آپ کے کوشچنس لینے سے پہلے میں یہ کہوں گا کہ آج یوسف علیہ السلام کی جو سٹوری کے بارے میں ہم پڑھنے والے ہیں، یوسف علیہ السلام کی ہسٹری، بایوگرافی جسے کہا جائے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے فیوریٹ نبی میرے یوسف علیہ السلام ہیں۔ آپ کے پتہ نہیں کون سے ہوں گے، لیکن میرے یوسف علیہ السلام ہے نا، اس لیے بڑا ایکسائٹڈ تھا کہ کب یوسف علیہ السلام کی سٹوری آئیں گے تو ہم یوسف علیہ السلام کے بارے میں پڑھیں گے۔ یعقوب علیہ السلام کے کتنے بیٹے تھے؟ ہم نے پچھلی کلاس میں پڑھا نا، 12 بیٹے تھے۔ تو 12 بیٹے اور یوسف علیہ السلام اور بنیامین الگ ماں سے تھے، اور وہ 10 الگ الگ ماؤں سے تھے، ہے نا، تو اس کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا۔ تو یوسف علیہ السلام کی جو لائف سٹارٹ ہوتی ہے نا، یوسف علیہ السلام جو پیدا ہوئے وہ فلسطین میں ہی پیدا ہوئے، ہے نا۔ بعض روایتیں ملتی ہے کنعان میں، لیکن کنعان سے تو یہ چلے گئے تھے، بعد میں کنعان میں آ گئے تھے، تو اصل روایت جو ہے وہ فدان میں پیدا ہوئے تھے، پھر کنعان چلے گئے تھے، یا کنعان یا فدان، 2 روایتیں ملتی ہیں، ہے نا۔ یہاں پہ کہاں پہ ہوئے برن؟ کنعان میں، کنعان میں رکھتے ہیں کنعان یا فدان، فدان۔ اور یوسف علیہ السلام کی شجر نسب کے بارے میں آتا ہے کہ یوسف بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم علیہ السلام بن آزر، اسی طرح سے نوح علیہ السلام تک، پھر آدم علیہ السلام تک۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ من اکرم الناس، کہ سب سے زیادہ بزرگ، سب سے زیادہ جو اچھے انسان اس امت میں گزرے ہیں وہ کون ہے پوری دنیا میں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یوسف علیہ السلام۔ صحابہ نے پوچھا کہ کس طرح سے؟ تو انہوں نے کہا کہ جو خود نبی ہے، باپ نبی ہے، دادا نبی ہے، پردادا نبی ہے، ایسا کوئی نبی نہیں گزرا جس کا ایسا شجر نسب ہو۔ تو یوسف علیہ السلام کیسے بزرگ انسان اور مطلب کتنے مرتبے، اونچے مرتبے والے نبی تھے، ہے نا۔ تو یوسف علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ یہ بچپن میں نا اپنی پھوپھی کے ہاں رہا کرتے تھے، کہ مطلب جب ان کی امی گزر گئی بنیامین کے اس پہ جننے پہ، تو ان کی امی گزر گئی تھی، تو بعد میں ان کی جو بہن تھی نا یعقوب علیہ السلام کی، انہوں نے کہا کہ میں اس کو پال لیتا ہوں۔ تو کچھ ٹائم تک وہ ان کے پاس رہے۔ اس کے بعد یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ اس کو واپس کر دو، تو اس کو بہت زیادہ محبت ہو گئی تھی یوسف علیہ السلام سے، وہ واپس کہاں کرتی؟ اس نے کہا میں واپس آپ کو نہیں دوں گی۔ اس نے کہا نہیں، میں بھی اس کے بغیر اب نہیں رہ سکتا۔ یعقوب علیہ السلام کو اس کی بہت محبت تھی، اس کی ماں سے بھی بہت محبت تھی، اس سے بھی بہت محبت تھی، اور یہ خوبصورت بھی بہت تھے، وہ آگے ہم اس کے بارے میں ذکر کریں گے۔ تو یوسف علیہ السلام جو ہے ان کی ہمدردی ان کے ساتھ وابستہ ہو گئی، اس پوفی کی ہمدردی اس کے ساتھ، فائقہ ان کا نام کہا جاتا ہے، تاریخ کی بہت ساری کتابوں میں فائقہ ان کا نام تھا۔ تو اس نے کہا اچھا آپ ایک کام کیجئے کہ اس کو میرے پاس کچھ دن ٹھہرنے دیجئے، مطلب کچھ دن اور میرے پاس اسے رکنے دیجئے، تو میں اس کو پھر آپ کو واپس کر دوں گا۔ لیکن اس کی ایک چال تھی اس کے پیچھے۔ وہ چال کیا تھی کہ جو یہ اسحاق علیہ السلام کا کمر بند تھا نا، یہاں پہ کمر پہ باندھتے تھے، اس کو کمر بند کہا جاتا ہے، کہ وہ ملا تھا اس کی بہن کو، یعقوب علیہ السلام کی بہن کو، کیونکہ وہ سب سے بڑی اولاد تھی اسحاق علیہ السلام کی، اس لیے اس کو ملا، اسحاق علیہ السلام کی بیٹی فائقہ کو ملا کیا؟ کمر بند وراثت میں۔ تو اس نے کیا کیا؟ بڑی چال بازی سے یوسف کے کپڑوں کے اندر وہ کمر بند باندھ دیا، اور الزام یہ لگایا کہ میرا کمر بند چوری ہو گیا، وہ ڈھونڈنے لگی اور باہر ڈھونڈنے لگی، اور باہر ڈھونڈتے ڈھونڈتے آخر کار وہ یوسف علیہ السلام کے کپڑوں کے اندر ملا۔ تو اس بہن نے کہا یعقوب علیہ السلام کی بھائی اس نے چوری کی ہے، اس لیے کیا ہوگا؟ چوری کا جو قانون ہے نا، وہ کنعان کے حساب سے یہ تھا کہ اس کو غلامی میں لیا جاتا تھا 4 سال کے لیے یا کسی مدت کے لیے۔ تو اس نے کہا اب یہ میرا غلام ہوگا، مطلب اب میرے یہاں یہ یہیں رہے گا۔ تو اس نے یعقوب علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے، اگر اس نے چوری کی ہے پھر آپ اپنے پاس رکھو، حالانکہ اس نے چوری نہیں کی تھی۔ یہ آگے ذکر آئے گا جب انہوں نے کہا تھا نا کہ بھائی یہ یوسف علیہ السلام اور جو بھائی ملے تھے، انہوں نے کہا کہ نہیں ہمارا بھائی ایک اور تھا، وہ بھی چور تھا، حالانکہ ایسی بات نہیں تھی، حالانکہ ان کو خود ہی باندھا گیا تھا تاکہ یہ میرے پاس رہے۔ محبتیں وابستہ ہو جاتی ہیں نا کسی انسان کے ساتھ، جو خوبصورت انسان ہوتا ہے اس کے ساتھ زیادہ محبتیں وابستہ ہو جاتی ہے۔ تو یہاں سے یوسف علیہ السلام کا ذکر چلتا ہے۔ پھر واپس آئے یہ یعقوب علیہ السلام کے پاس، تو پھر سے باپ کی محبت ان سے وابستہ ہو گئی، ہے نا۔ تو جب باپ کی محبت ان کے ساتھ وابستہ ہو گئی تو بھائیوں کو حسد ہو گیا، ٹھیک ہے نا۔ بھائیوں کو کیا حسد ہو گیا کہ ایک مرتبہ یوسف علیہ السلام سوئے ہیں تو ان کو خواب آ گیا، ہے نا۔ قال یا بنیا لا تقصص، اس کے پیچھے جو یا ابتی انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین۔ تو یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ قال یا بنیا لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیکیدوا لک کیدا ان الشیطان للانسان عدو مبین، کہ میرے بیٹے اس خواب کا ذکر آپ کسی سے نہیں کرنا، ہو سکتا ہے تمہارے بھائی تمہارے خلاف کوئی چال چلے، کیونکہ شیطان انسانوں کا بہت کھلا ہوا دشمن ہے، اس لیے اپنے بھائیوں سے کبھی اس کا ذکر نہیں کرنا۔ لیکن یہاں پہ آتا ہے کہ یہ جو لیا اور زلفا میں نے پچھلی بار پڑھا تھا، یعقوب علیہ السلام کی جو بیویاں تھیں، ان میں سے کسی نے سن لیا تو ان نے اپنے بیٹوں کو بتایا۔ اب ان کے حسد میں اور زیادہ اضافہ ہو گیا، ان کا حسد تو بہت اوپر لیول پہ چلا گیا نا کہ بھائی اس نے ایسا خواب کیوں دیکھا۔ وہ تو سامنے تعبیر بھی اس کے سامنے باپ نے تعبیر کر دی کہ ایک وقت آئے گا، کیا ہوگا کہ تمہارے سامنے جو ہے
मतलब सजदे रेज हो, बड़ी बड़ी हस्तियां तुम्हारे सामने सजदे रेज होंगी। तो अब उनको पता चला तो उनको और हसद हो गया। अब उनने कहा अपने बाप से कि आप इसे हमारे साथ भेज दो, क्या करेंगे हम, अगर खेलेंगे कूदेंगे या कुछ और करेंगे, आप इसको हमारे साथ क्यों नहीं भेजते। हालांकि उनने करना कुछ और था यूसुफ अलैहिस्सलाम के साथ, लेकिन उन्होंने बड़ी जिद लगाई कि यूसुफ अलैहिस्सलाम को हमारे साथ भेज दो, हमारे साथ भेज दो। तो याकूब अलैहिस्सलाम ने कहा कि ठीक है आप इसको ले जाओ। लेकिन याकूब अलैहिस्सलाम ने पहले बहुत इस तरह मना किया कि मुझे लगता है कि कोई भेड़िया आ जाएगा इसको खा जाएगा, फिर मैं क्या करूंगा, मतलब भेड़िया आकर इसको खा जाएगा फिर मैं क्या करूंगा। उन्होंने कहा कि नहीं इसको कोई नहीं खाएंगे, भला हमारे होते हुए, हम तो 11 भाई है 12 भाई है, मतलब हमारे होते हुए 10 भाई थे उस वक्त, जब 10 भाई है 10 भाइयों के होते हुए कौन इसको खा सकता है। तो याकूब अलैहिस्सलाम को बड़ा इसरार किया। यूसुफ ने कहा मैं भी जाना चाहता हूँ, तो फिर उन्होंने उनको भेज दिया। तो ये चले गए, कहाँ पे चले गए, ये मिड लाइफ के बारे में आता है, इनकी मिड लाइफ में ये सारी चीजें चलती है ना, मिड लाइफ में ये कुएं का सफर, ये सारी चीजें भाइयों ने अब ले लिया। अब कुछ रास्ते तक तो वो बिल्कुल सही चले, मतलब यूसुफ अलैहिस्सलाम के साथ। जैसे ही बाप की नजरों से ढल गए ना, फौरन उनको मारना शुरू कर दिया, पीटना शुरू कर दिया। कि वो भाइयों को बुलाते थे, एक को बुलाते थे वो मारता था, दूसरों को बुलाते थे मतलब बचाने के लिए वो मारता था। तो आखिरकार उनमें से जो बड़ा भाई, एक दो रिवायतें मिलती, एक तो रिवायत मिलती है यहूदा के बारे में जो उसका बड़ा भाई था, एक रिवायत मिलती है किसके बारे में, लावी के बारे में, कि मतलब इन दो में से किसी ने उसको बचा लिया। बाज रिवायत में आता है कि यहूदा ने, बाज रिवायत में आता है कि लावी ने, कि मतलब इन दो में से उसने कहा कि भाई इसको मारो मत, बल्कि तुम्हारा मोहब्बत हासिल करना है ना अपने बाप से, मतलब आप तो चाहते हो कि हमारे बाप की मोहब्बत हमारी तरफ वाबस्ता हो जाए, तो तुम्हें क्या करना है, तुम इसको किसी कुएं में भेज दो, है ना, तो किसी कुएं में डाल दो, तुम इसको मारो मत, है ना। उन्होंने कहा कौल क़ाइलुम मिनहुम ला तक़्तुलू यूसुफ वअल्क़ूहु फ़ी ग़ियाबतिल जुब्बी यल्तक़ितहु बादु सय्यारति इन कुंतुम फ़ाइलीन, कि आप इसको किसी अंधे कुएं में डाल दो। ग़ियाबतिल जुब कहते हैं अंधा कुआं जिसमें कोई जाए ही ना, आप उसको वहां डाल दो, कोई सैरा नशीन काफिला लेकर उसको चला जाएगा कहीं और, तो आप इसको मारो मत। ये उन्हें मशवरा दिया बड़े भाई ने। क़ाल या बुनय्या ला तक़्सुस रुयाका अला इख़्वतिका फ़यकीदू लका कैदा, यानी उन्होंने कहा कि क़ाल क़ाइलुम मिनहुम ला तक़्तुलू यूसुफ वअल्क़ूहु फ़ी ग़ियाबतिल जुब्बी यल्तक़ितहु बादु सय्यारति इन कुंतुम फ़ाइलून, है ना। ये उनने एक ने कहा कि यूसुफ को मारो मत, बल्कि इसको किसी अंधे कुएं में डाल दो। तो उन्होंने क्या किया, अब यहाँ से लिया, अब उनको यूसुफ अलैहिस्सलाम को एक ऐसे कुएं में डालने की उन्होंने कोशिश की कि मतलब जो नमकीन खारा पानी जहाँ से काफिला भी नहीं गुजरता था, उन्होंने बड़ी चालाकी से की। उनने कहा था कि भाई इसको कुएं में डाल दो, लेकिन वो खारा पानी था ना, कि भाई यहाँ तो पानी लेने नहीं आएंगे, क्या होगा फिर, यहीं सड़ के मर जाएगा, गल जाएगा, इसलिए इसको अंधे कुएं में डाल देते हैं। तो फिर उनने उसको अंधे कुएं में डाल दिया उसमें। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम जैसे उस कुएं के साथ ऐसे चिपट गए ना, वो मंडेर के साथ हाथ पड़ा, तो उनका कुर्ता उतार लिया गया कि बाप को तो दिखाना है ना, कि मतलब बाप को कुछ ना कुछ तो दिखाना है कि क्या करना है, कि मतलब ये क्या हुआ यूसुफ के साथ, इसलिए उनने कुर्ता उतारा। उनकी पहले से प्लानिंग है कि बाप को बता देंगे कि उसको कोई भेड़िया खा गया, ठीक है ना। तो जैसे यूसुफ अलैहिस्सलाम मंडेर पे हाथ आते हैं, तो उन्होंने किसी डंडे वगैरह से यूसुफ अलैहिस्सलाम को यूं हाथों पर मारा, वो नीचे गिर गया। गिरने से पहले अल्लाह ने कहा जिब्रील को कि हाँ परों पर पकड़ लो, गिरने से पहले पकड़ दो। तो गिरने से पहले जिब्रील अलैहिस्सलाम ने पकड़ लिया, वो नीचे गिरे ही नहीं, उनको कहाँ से लगती, वो एक पत्थर पर आराम से आकर बैठ गए, बिल्कुल आराम से। तो फिर उन्होंने और आवाज दी नीचे कि क्या पता जिंदा है कि नहीं। वो तो उसे चाहते थे कि किसी बड़े पत्थर, अगर जिंदा होगा कोई बड़ा पत्थर इस कुएं में डाल देंगे तो मर जाएगा। तो उसने कहा, शायद वो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने ये सोचा कि शायद इनको कोई आर आ गया, तरस आ गया, शायद मुझे बाहर निकालेंगे, इसलिए उन्होंने उस आवाज का जवाब दिया कि मतलब जो उन्होंने उसे बुलाया था। तो उन्होंने कहा ये तो अभी जिंदा है। तब तक उन्होंने देखा कि काफिला आ गया, ये भाग गए, छुप गए, ठीक है ना। ये यूसुफ अलैहिस्सलाम के बारे में था, ये छुप गए, देखा कि अब काफिला आता है तो अब इसके साथ क्या होता है। तो काफिला आता है, वो तो नमकीन पानी वहां कोई जाता ही नहीं, अब उनको बहुत प्यास लगी थी, तो उन्होंने डाल दिया वो डोल उसके अंदर, कुएं के अंदर डाल दिया, है ना। ये कुरान में भी आता है ना, बहुत जगहों पे आता है कुरान में भी। अब कुएं में जाके जैसे यूसुफ अलैहिस्सलाम गिरे ना, तो अल्लाह ताला ने वही भेज दी, फिर तुम टेंशन मत करो, इनको आगे पता चल जाएगा तुम्हारा जिक्र और तुम्हारी हैसियत और मर्तबा, तुम्हें सब कुछ इनको पता चल जाएगा आगे। अब काफिला वहां से गुजरता है ना, कुरान में भी इसका जिक्र है। मैं कुरान खोल, कुरान से ही हम पढ़ेंगे, ठीक। चलो, तो जैसे वो कुएं में डाल दिया ना, तो उन्होंने डाल दिया उसके अंदर डोल, है ना। तो उस कुएं में यूसुफ अलैहिस्सलाम ऊपर चढ़ गए। तो उन्होंने कहा या बुशरा हाजा गुलाम, मतलब इसके अंदर एक खिंचावट है कि भाई ये क्या है। हालांकि था तो वो लड़का ही। उसने कहा कि हाजा गुलाम, ये यहाँ पे लड़का क्या कर रहा है।
मतलब वो तो ऐसे नूरानी हो रही है, उन्होंने पहली बार ऐसा खूबसूरत लड़का देखा। बुशरा कहा जाता है कि मतलब बशारत हो तुम सब के लिए, यहाँ पे एक लड़का निकल आया, यहाँ पे हमारे लिए कीमती चीज निकल आई। लेकिन बाज रिवायत में आता है हिस्ट्री की कि मतलब वो बुशरा था ना, उनके साथियों का नाम था जो काफले वाले थे। उसने उनको बुलाया कि या बुशरा, ओ बुशरा, हादा गुलाम। यहाँ पे देखिए हादा गुलाम में हैरत है कि मतलब ये क्या बंदा है, ये तो इतना खूबसूरत है। मतलब फिर उन्होंने डोल निकाला तो बाहर निकाला। जब बाहर निकाला तो फौरन ही भाई पहुंच गए। उन्होंने कहा कि ये तो हमारा गुलाम है, तुम्हें कहाँ से मिला? कहा हमें तो कुएं से मिला। कहा हम बेच डालते हैं इसको ले जाओ। और 20 दिरहम में बेच दिया यूसुफ अलैहिस्सलाम को कि भैया हमारा गुलाम है, भागा हुआ गुलाम है, लिहाजा तुम इसको क्या करो, ले जाओ यहाँ से कहीं और ले जाओ। लिहाजा इसको दिखाना भी किसी को नहीं। और 20 दिरहम लेकर, मतलब वो 10 भाई थे तो 2-2 दिरहम हर एक ने रख लिए, मतलब 20 दिरहम उसने दे दिए और उस यूसुफ अलैहिस्सलाम को बेच दिया। अब यूसुफ अलैहिस्सलाम जा रहे हैं यहाँ से, ये वापस आ रहे हैं। कहाँ पे आ रहे हैं वापस? याकूब अलैहिस्सलाम को रात के रोते रोते, है ना, कुरान में आता है ना, ये रात को आ गए ना वापस। वजाउ आबाहुम गिशाअन यबकून क़ालू या अबाना इन्ना ज़हबना नस्तबिक व तरकना यूसुफ़ इंद मताइना फ़अकलहु ज़िब वमा अन्त बिमुमिनिन लना वलौ कुन्ना सादिकीन वजाउ अला कमीसिन बिदमिन कज़िब क़ाल बल सव्वलत लकुम अनफुसुकुम अम्रा फ़सब्रुन जमील वल्लाहुल मुस्तआनु अला मा तसिफून। जब याकूब अलैहिस्सलाम के पास उन्होंने ये लाया ना कुर्ता, सब कुछ लाया, रात को रोते रोते हुए रात के टाइम पे पहुंच गए। रात के टाइम जैसे पहुंच गए कुर्ता लेकर, तो याकूब अलैहिस्सलाम को कहने लगे कि यूसुफ को तो भेड़िया खा गया, हम खेल कूद में मस्त हो गए, यूसुफ को हमने सामान पे रखा था, सामान के नजर पे रखा था, तो भेड़िया आ गया उसको खा लिया। ये उसका कुर्ता है, खून आलूद कुर्ता। अब यूसुफ अलैहिस्सलाम के बारे में जो याकूब अलैहिस्सलाम ने पहले ही कहा था ना कि इसको कोई भेड़िया खा जाएगा, उन्होंने इसी बात को बुनियाद बनाकर इस पर मसला खड़ा किया कि उसको तो भेड़िया खा गया। अब याकूब अलैहिस्सलाम ने देखा कि कुर्ता कहीं से फटा हुआ है ही नहीं, तो भेड़िया ने कहाँ से खा लिया। तो याकूब अलैहिस्सलाम ने कहा कि भेड़िया तो बड़ा चालाक था। मतलब क्या बोलता है, कुर्ता उतार के खाया यूसुफ को, कि कुर्ते पे कोई निशान है ही नहीं, कुर्ते पे कुछ भी नहीं है। तो भेड़िया बड़ा सयाना था कि मतलब इसको कुर्ता उतार के खाया है यूसुफ को। तो उनका यूसुफ और याकूब अलैहिस्सलाम ने कहा कौला बल सव्वलत लकुम अनफुसुकुम अमरा, ये तो तुम्हारे नफ्स की बनाई हुई चीज है। कौला बल सव्वल, इसमें एक गुस्सा है इस आवाज में। कौला बल सव्वलत लकुम अनफुसुकुम अमरा फसब्रुन जमील, मैं तो सब्र करूंगा, वल्लाहुल मुस्तआनु अला मा तसिफून। अब मेरे सब्र के अलावा कोई चारा नहीं है मेरे पास। तुमने जो झूठ गढ़ लिया है, ये तो सबको पता है कि सरासर झूठ है, तुम्हें उससे नफरत थी, तुम्हें उससे हसद था, लेकिन तुमने अब मैं सब्र जमील इख्तियार करूंगा, फसब्रुन जमील, अब मैं सब्र जमील इख्तियार करूंगा। लेकिन अब यूसुफ अलैहिस्सलाम यहाँ से चले ना काफिले में। यूसुफ अलैहिस्सलाम की उम्र के बारे में आता है कि यूसुफ अलैहिस्सलाम तब थे 17 साल के, जब वो मिस्र पहुंचे थे। मिस्र जब पहुंचे थे ना, तब वो 17 साल के थे, या उससे भी कम एज इनकी बताई जाती जब वो वहां पर पहुंचे। तो ये काफिला यहाँ से चला और जाकर कहाँ पहुंचा? सीधा मिस्र में। अब मिस्र में जिस शख्स ने इसको खरीदा था उसका नाम था मलक, मालिक या मलक, इसके बारे में आता है। ये 2 नाम थे उसका, ये जो जिसने यूसुफ अलैहिस्सलाम को खरीदा था पहले। बाद में अजीज मिस्र ने खरीदा। जैसे मंडी में बोली लगी यूसुफ अलैहिस्सलाम की, तो यूसुफ अलैहिस्सलाम बहुत ज्यादा खूबसूरत थे। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम के बारे में आता है कि यूसुफ अलैहिस्सलाम बहुत ज्यादा खूबसूरत थे, तो इनका कीमत भी वैसी लगनी थी ना, खूबसूरत थे। तो उस अजीज मिस्र ने, वो जो अजीज मिस्र था ना, वजीर खजाना था, ये कहाँ का? मिस्र का, इजिप्ट का ये मिस्र वजीर आजम था। वजीर आजम ही हम समझ लें, तो वजीर आजम के पास पहुंच गया। अब उसने खरीद लिया। कितने का खरीदा? 3000 सिक्कों में, किस तरह से ऐसे ऐसे रिवायतें आती, बहुत सारे सिक्कों में उसको खरीदा। अब उसने उस यूसुफ अलैहिस्सलाम को लाया और उन्होंने कहा कि ऐन मुमकिन है, अपनी बीवी को कहा कि हम इसको बेटा बना लें, क्योंकि उनके पास कोई औलाद नहीं थी। क्योंकि उसके बारे में कहा जाता है कि उसको औरतों से कोई लगाव ही नहीं था। एक तरह से हम नामर्द कहें, जुलेखा ने उसके साथ शादी की थी क्योंकि वो अजीज मिस्र था, लेकिन एक तरह से हम नामर्द कहें तो वो था, उसको औरतों से कोई रगबत नहीं थी, लेकिन उसने ऐसे शादी कर ली थी। तो उसके बारे में आता है उसने यूसुफ अलैहिस्सलाम को खरीदा कि हम इसको बेटा बना लेंगे। अब जुलेखा बहुत ज्यादा खूबसूरत थी, मिस्र की तमाम औरतों में जुलेखा सबसे ज्यादा खूबसूरत। तो ये इजिप्ट में यूसुफ अलैहिस्सलाम कहाँ पहुंच गए? आप इजिप्ट में, ठीक है। अब यूसुफ अलैहिस्सलाम की लाइफ यहाँ से स्टार्ट होती है। पहले क्या हुआ? पहले मुसीबत आई कुएं में, अब फिर से फरावानी आने वाली है, मतलब फिर से एक अच्छी जिंदगी गुजरने वाली है कुछ टाइम के लिए। तो अब उन्होंने क्या किया? इसको बेटा ही बना लिया, सारी चीजें सिखाई, इल्म सिखाया, पढ़ना लिखना सिखाया, यूसुफ अलैहिस्सलाम को एक तरह का बेटा ही बना लिया, है ना। लेकिन अब क्या होता है आगे कि यूसुफ अलैहिस्सलाम जवानी में आ गए ना, अब 25 साल
30 سال جب ایج ہو گئی، مطلب 22-23 سال 25 سال، اس ایج میں بندہ بہت خوبصورت ہوتا ہے. اس ایج پر جب یوسف علیہ السلام آئے تو کیسے ہوں گے؟ ویسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کہا گئے نا معراج پہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوسف علیہ السلام کو دیکھا، کہا اوتی شطر الحسن، کہا یوسف کیا چیز ہے، وہ تو حسن کا سیدھا احدہ ہے، دیوتا، مطلب حسن کا دیوتا جسے کہا جائے، کہ احدہ یوسف علیہ السلام کو دیا، احدہ پوری مطلب کائنات کو دیا حسن. جو جتنے بھی لوگ آج تک آئے ہیں، جو آئیں گے اور جو ابھی موجود ہے، ان کو 50% دیا، 50% یوسف علیہ السلام کو دیا، تو کیسے خوبصورت ہوں گے یوسف علیہ السلام. تو یوسف علیہ السلام جب چمکے بالکل ایسے سورج کی طرح، تو عزیز مصر کی بیوی لٹو ہو گئی. اس میں عزیز مصر کا جو نام آتا ہے نا وہ ہے قطفیر، ٹھیک ہے، QATFW، قطفیر اس کا نام تھا، ہے نا. اور اس ٹائم پہ جو بادشاہ تھا اس کا نام تھا ریان بن ولید، ہے نا، اور جو اس کا آگے بیٹا آیا اس کا نام تھا ولید بن ریحان، ٹھیک ہے. تو اس ٹائم پہ اصل جو بادشاہ تھا نا، جو ہیڈ تھا، اس کا نام تھا ریان، لیکن یہ عزیز مصر تھا، یہ بھی مطلب ایک طرح سے وزیر تھا، اس کا کوئی کم حیثیت والا بندہ نہیں تھا. اب عزیز مصر کی بیوی کس پر لٹو ہو گئی؟ یوسف علیہ السلام پر، کہ مطلب اس کی محبت میں گرفتار ہو گئی، کیونکہ وہ جوانی ایسی خوبصورتی سب کچھ. اب وہ اس کو بہکانے لگی، ہے نا. اب ان نے ایک مرتبہ کیا کیا، پورا پروگرام بنا لیا، سب کچھ پورا پروگرام بنا کے کیا کر لیا، اس کو اندر بلا لیا. 7 دروازے بند کر کے، 7 دروازے کیا کیے، بند کیے. اندر ایک دروازہ قفل لگا دیا اس کو، دوسرا، تیسرا، چوتھا، 7 دروازوں کے اندر یوسف علیہ السلام کو بھیج دیا. اور وہاں پر وہ اظہار کر رہی ہے کہ یوسف علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ وہ قرآن میں آتا ہے نا، یوسف علیہ السلام نے کہا قال معاذ اللہ، میں ایسا نہیں کر سکتا. وہ تو بعد کا واقعہ ہے، لیکن اس سے پہلے اس نے 7 دروازوں کو قفل لگا کے یوسف علیہ السلام کو اندر بلا لیا، ہے نا. تو عزیز مصر کی بیوی اسے کہتی ہے وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الابواب وقالت حیت لک، مطلب جلدی کر. یا حی تلک کہا جاتا، مفسرین نے اس کو کہا کہ بم ہے، ایک طرح سے بم جسے کہا جائے نا، کہ بم سے کوئی بچ سکتا ہے. اب عورت اس کو خود ہی کہہ رہی ہے کہ حی تلک. اب آج کے جوان کو کوئی کہے کہ حی تلک، تو پھر تو وہ 1 سیکنڈ میں نمٹ سکتا ہے نا. لیکن یہاں پہ یوسف علیہ السلام کو وہ کہہ رہی ہے سب سے زیادہ خوبصورت عورت. وہ بھی کوئی مطلب ایسی عورت نہیں تھی، کوئی مطلب ایسے ہی چوڑیاں بیچنے والی یا کچھ اور جو خوبصورت نہیں تھی، لیکن وہ بہت زیادہ خوبصورت تھی. وہ کہہ رہی کہ حی تلک، مطلب جلدی کرو، کوئی آ جائے گا تب تک، میرے ساتھ آپ غلط کام کرو. تو پھر اس نے کیا کہا یوسف علیہ السلام نے، قال معاذ اللہ ان ربی احسن مثوی انہ لا یفلح الظالمین، کہ ظالمون کے مطلب ایسے لوگ کبھی فتح نہیں پاتے جو یہ کام کرتے ہیں، مطلب جو ظلم کرتے ہیں، تو ایسے لوگ کبھی فتح نہیں پاتے. وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ كَذَٰلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ. ٹھیک ہے، یہ یوسف علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ یوسف علیہ السلام جب اندر چلے گئے نا، یہ جو ہم نے برہان کے بارے میں پڑھا، کہ مطلب اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں کہ یوسف بھی اس کی طرف مائل ہو رہی، وہ تو تھی نا مائل، اب یوسف بھی اس کی طرف مائل ہو رہے تھے، لیکن فوراً ہماری طرف سے ایک برہان ظاہر ہوئی کہ وہ اس کی طرف مائل نہیں ہوا. ٹھیک ہے، یہ برہان جو ہے نا، مفسرین نے اور تاریخ دانوں نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ مطلب جب یوسف علیہ السلام اندر تھے نا، وہ آپ کے حسن کی تعریف کر رہی تھی کہ آپ کے بال کتنے خوبصورت ہے. تو یوسف علیہ السلام نے کہا کہ قبر میں آ کر یہ سب سے پہلے جھڑ جائیں گے. انہوں نے کہا کہ آپ کی آنکھیں کتنی خوبصورت ہے، کہا یہ قبر میں آ کر پھٹ کر بہہ جائیں گی. کہا آپ کتنے خوبصورت ہو، کہا یہ تو کیڑوں کا ایک خوراک ہے، یہ جسم جیسے قبر میں جائے گا تو کیڑے اس کو کھا جائیں گے، تو اس پر میں کیا ناز کیسے کر سکتا ہوں. لیکن اتنی تعریفیں کر رہی تھی کہ اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں کہ وہ بھی اس کی طرف مائل ہو رہا تھا، لیکن فوراً برہان دیکھ لی. برہان کیا دیکھ لی، کہ ان کی یعقوب علیہ السلام کی ان کو شکل نظر آئی وہاں پر، کہ مطلب یعقوب علیہ السلام ایسے انگلیوں، مطلب ایک دیوار پر ایسے شکل بنی نا یعقوب علیہ السلام کی، یعقوب علیہ السلام ایسے انگلی ڈال کے منہ میں ہے. کہا بیٹا ایسا کام نہیں کرنا، اگر تم اس سے بچ گئے تو تم اس پرندے کے مانند ہو جو ہوا میں اڑتا ہے، جس کو کوئی پکڑنے والا نہیں ہوتا. لیکن اگر تم نے یہ کام کیا تم مردے پرندے کی طرح ہو جاؤ گے جو بالکل زمین پر بیٹھا ہوا ہے. اور دوسری انہوں نے مثال دی کہ نہیں، تم ایسے ہو جاؤ گے اگر تم نے یہ کام نہیں کیا، بالکل ایک اچھا خاصا جو بیل ہوتا ہے نا، جو کسی کے قابو میں نہیں آتا، کہ تم ایسے ہو جاؤ گے. لیکن اگر تم نے یہ کام کیا تو تم ایسے ہو جاؤ گے جیسے مردہ بیل جس کے سینگوں تک چونٹیاں پہنچتی ہے، مطلب اس کی کوئی ویلیو نہیں رہتی، اس کا کوئی خاصا نہیں رہتا. تم ایسے ہو جاؤ گے، اس لیے ایسا کام نہیں کرنا. برہان کے بارے میں یہ ذکر آتے ہیں، لیکن بعض کہتے ہیں کہ فوراً اللہ کی طرف سے وہی آئی تھی، لیکن بعض کہتے ہیں کہ نہیں، یعقوب علیہ السلام کی ایک تصویر ان کو بنی تھی، تو پھر انہوں نے چھوڑ دیا کہ نہیں، یہ میں کام نہیں کروں گا. انہوں نے کہا قال معاذ اللہ، اللہ کی پناہ میں ایسا نہیں کر سکتا. تو پھر یوسف علیہ السلام
जो है यहाँ से भागे। जैसे भागे ना, दरवाज़ा खुद ब खुद खुल रहा है, ठड़क, पहला दरवाज़ा ठक खुल करके खुल गया, दूसरा ठक, तीसरा ठक, चौथा ठक, पांचवा, छठा, सातवें दरवाजे पर आकर अजीज मिस्र की बीवी जुलेखा ने ऐसे पकड़ा कमीज और फाड़ दिया। अच्छा, जुलेखा के बारे में आता है, इसका जो जुलेखा का नाम था ना, इसका नाम था असली राइल। राइल आता है तारीख की किताबों में और जुलेखा आता है तौरात में इसका नाम। कुरान में इसका नाम कुछ भी नहीं आया है, सीधा अजीज मिस्र की बीवी आया है। कुरान में कभी इसका नाम ना जुलेखा आया ना राइल आया है। राइल इसका तारीख में नाम बताया जाता है, तौरात में इसका जुलेखा बताया जाता है। अब उसने जैसे ही उस पर ऐसे हाथ लपेटा, मतलब ऐसे कमीज फाड़ दी, तो सामने अजीज मिस्र। अब अजीज मिस्र सामने है तो उसने क्या कहा, कुरान देखो क्या जिक्र करता है। वस्तबकल बाब वक़द्दत कमीसुहु मिन दुबरिन वल्फैना सय्यदहा लदल बाब, कि मतलब जैसे दरवाजे पर आए तो उसने कमीज फाड़ दी। क़ालत मा जज़ाउ मन अरादा बि अहलिका सूअन इल्ला अन युस्जना व अज़ाबुन अलीम, कि मतलब उस बंदे की क्या सजा हो सकती है जो आपके घर वालों के साथ गलत करे, सिवाय उसको किसी जेल खाने में डाला जाए या कैद कर दिया जाए। मुफस्सिरीन कहते हैं कि मतलब उसको अभी तक वो नफसानी प्यास नहीं बुझी थी, कि मतलब वो अभी चाहती है कि यूसुफ मेरी तरफ फिर से माइल हो जाए, ये गलत काम फिर से मेरे साथ करे, लिहाजा इसको क्या किया जाए, ताबे करने के लिए कोड़े मारे जाए या जेल में डाला जाए। ये कुरान में अल्लाह रब्बुल इज्जत कह रहे हैं, ठीक है। क़ाल हिय रावतनी अन नफ्सी व शहिद शाहिद मिन अहलिहा, अब इनके घर वालों में से एक बंदे ने जो है गवाही दी। कहा जाता है कि इसका कोई अपना ही था, उसने गवाही दी, लेकिन ऑथेंटिक रिवायत जो मिलती है ना, वो मिलती है कि एक बच्चे ने वहां पर गवाही दी थी, कि मतलब एक बिल्कुल मासूम दूध पीता बच्चा। इसमें हदीस में भी इसकी जिक्र आता है, तब ये ऑथेंटिक है। हदीस में आता है कि 4 शख्सों ने पहले ही बात की थी, मतलब बचपन में, उनका एक नाम इसमें भी आता है, ईसा अलैहिस्सलाम ने की थी, इसने की थी, तो इनके दो के नाम और आता है, हदीस में है, सही हदीस में है। तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके बारे में हदीस भी है, इसलिए कहा जाता है ये ऑथेंटिक रिवायत है कि एक बच्चे ने जो है उसके बारे में क्या दी, गवाही दी उनके घर, हालांकि वो उनको अपना ही था बच्चा। वशहिद शाहिद मिन अहलिहा इन कान कमीसुहु कुद्दा मिन क़ुबलिन फसदक़त व हुवा मिनल काज़िबीन इन कान कमीसुहु कुद्दा मिन दुबुरिन फकज़्ज़बत व हुवा मिनस सादिकीन, कि मतलब उस बच्चे ने ये गवाही दी सिंपल, उसने पूरी दुनिया की कहानी जोड़ के नहीं बताया। उसने कहा कि भाई आप इतना देख लो, अगर इसकी कमीज आगे से फटी है तो मतलब जुलेखा जो है वो हक पर है और यूसुफ गुनहगार है, लेकिन अगर इसकी कमीज पीछे से फटी है तो क्या है, जुलेखा गुनहगार है, ये बिल्कुल साफ सफाई वाला बंदा है, पाक दामन है। तो उन्हें देख लिया कि कमीज तो पीछे से फटी है, तो उन्होंने कहा कि यार वाकई तुम औरतों का मकर बड़ा ही मकर है। इन्होंने कहा ना इन्ना कैद कौला, उसने क्या कहा, कौला इन्नहु मिन कैदकुन्ना इन्ना कैदकुन्ना अज़ीम, बेशक तुम औरतों का मकर बड़ा ही मकर है, कि मतलब औरतों का मकर जो है वो बड़ा ही खतरनाक मकर होता है। ये किसने कहा, अजीज मिस्र ने, जिसका नाम क्या था, कतफीर। उसने कहा कि तुम औरतों का मकर बड़ा ही मकर है, लेकिन अब वो मजबूर था ना, उसकी बीवी थी, उसकी भी जलालत थी कि भाई लोगों में ये मसला आम हो जाएगा, तूने क्या कर लिया, मुबीन, ठीक है। अब जो है वो अफवाह फैल गई, पूरे शहर में अफवाह फैल गई। क्या फैल गई अफवाह, कि भाई अजीज मिस्र की बीवी एक गुलाम पर लटू हो गई, मतलब इनके घर में कोई बच्चा गुलाम था, उस पर इतनी खूबसूरत औरत बिल्कुल अपना सब कुछ दे बैठी, तो ये क्या है। तो अब सब बदनामी हो गई, पूरी जगहों पे बदनामी हो गई। हालांकि यूसुफ अलैहिस्सलाम तो बिल्कुल बेगुनाह थे। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा भी कि यार इसने मुझे गुनाह के लिए जो है बुलाया, मैं थोड़ी गया, बल्कि इसने मुझे बुलाया हिले बहाने से, बाद में मुझे गुनाह की दावत दी, मैंने कुछ नहीं किया। लेकिन अब वो मजबूर था ना, उसकी बीवी थी, तो उसने ना सुने का ना सुना कर दिया, ठीक है। हाशा लिल्लाहि मा हादा बशर इन हादा इल्ला मलकुन करीम, है ना। अब उसने क्या किया, अजीज मिस्र की बीवी ने, कि भाई मैं तुम्हें दिखाती हूँ, तुमने कहा ना कि एक बंदे पर लटू हो गई, इसके ऊपर मतलब दिल दे बेटी, तुम्हें दिखाती हूँ तुम्हें कौन सा बंदा है। तो अब उसने पूरे सब की दावत कर दी, वहां पे जितने भी अजीज मिस्र के लोग थे ना, अजीज मिस्र नहीं, मिस्र के जितने भी लोग औरतें थी ना, जिनके ऊपर बातें चल रही थी, उनको बुला लिया इसने, और क्या किया, अपने उस दावत में मधु किया, और सबको क्या दिया, तरंज, अतरंज जिसे कहा जाता है, एक जो मुसम्मी जैसा है ना, संतरा जैसा फल, वो दिया काटने के लिए, और बहुत तेज धार चाकू दिए काटने के लिए। अब उनको बुलाया जा रहा है और कहा जा रहा है कि तुम ये फल काटो, और यूसुफ अलैहिस्सलाम अंदर किसी दूसरे कमरे में है। अब जैसे वो फल काटने में मशगूल हो गई, तो क्या कहा गया यूसुफ अलैहिस्सलाम को, क़ालत इख़रुज अलैहिन्ना, कि मतलब आप निकल आओ बाहर। अब उसको कहा जाए यूसुफ अलैहिस्सलाम को कि आप बाहर निकल आओ। ने क्या किया, फ़ाशा लिल्लाहि मा हादा बशर
इन हादा इल्ला मलकुन करीम। अब उन्हें यूसुफ अलैहिस्सलाम को देख लिया ना, ऐसे आंखें उधर की तरफ टपक गई बिल्कुल ऐसे, तो वो ऐसे देख रही यूसुफ अलैहिस्सलाम को, ऐसे ऐसे ऐसे, और उंगलियां काट रही है, खून बह रहा है और पता नहीं चल रहा है। यूसुफ अलैहिस्सलाम चले वापस आ गए और ये कह रहे हैं माँ, ये उन्हें यहाँ पे कहा माँ हादा बशर, ये क्या बंदा है ये, और आगे कह रही है इन हादा इल्ला मलकुन करीम, ये कोई बंदा नहीं है, ये कोई बशर नहीं है, बल्कि क्या है, कोई फरिश्ता है। फरिश्ता नहीं, कोई नूरानी मखलूक है। इसका तर्जुमा इस तरह से किया क्योंकि फरिश्तों को वो जानते नहीं थे। कहा जाता है या तो ये कोई नूरानी मखलूक है या कोई ये देव है, मतलब इतना खूबसूरत। हालांकि उनको पता ही नहीं हमारे हाथों के साथ हो क्या रहा है। उनने देखा तो सारी उंगलियां कटी हुई है, वो तो बिल्कुल ऐसे देखती रह गई ना, इतना खूबसूरत बंदा। तो उनने अपने सारे हाथ काट लिए। और बाज़ रिवायत में आता है कि हाथ तो एक ही ने काटा था। यूसुफ अलैहिस्सलाम उसके पास गए पट्टी करने के लिए, मतलब पट्टी देने के लिए, इसका हाथ कट गया, तो बाकी सब ने खुद ही काट लिए ताकि यूसुफ अलैहिस्सलाम हमारे पास आए। लेकिन ऑथेंटिक रिवायत यह है कि सब ने एक साथ अपने हाथ काटे थे, सब ने एक साथ ऐसे तकती रह गई कि भाई ये क्या बंदा है। उन्होंने कहा कि ये कोई आम बंदा नहीं है, बल्कि ये कोई मलक है, ये कोई फरिश्ता है, कोई नूरानी मखलूक है, कोई देव है, ये कोई आम बंदा नहीं है। अब जुलेखा ने कहा कि ये वो बंदा है जिसके लिए तुम मुझे ताने दे रहे थे, मैंने इसे अपनी तरफ बुलाया लेकिन ये बिल्कुल पाक दामन रहा, लिहाजा ये अभी अगर ये और आगे कह भी रही है कि भाई ये अगर मेरा मुती नहीं हुआ, मेरा फरमाबरदार नहीं हो, फिर से इसको जेल के अंदर डाल दूंगी, मतलब जेल के अंदर या उसे कोड़े लगवा दूंगी ताकि ये मेरा मुती हो जाए। मतलब वो दिखाना ये चाहती थी, उस दावत का मकसद ये था कि तुम मुझे जो ताने दे रही हो ना, वो देख लो कि कौन सा बंदा है। अगर इसमें मैं फिदा नहीं होती और क्या होती, इतना खूबसूरत है। अब यूसुफ अलैहिस्सलाम को यहाँ से जो कहाँ भेजा जा रहा है कि मतलब इस सब के बाद भी यूसुफ अलैहिस्सलाम को कहाँ पे भेजा जा रहा है, जेल में। हालांकि सबके सामने सफाई मौजूद है, सब कुछ है। आगे फिर यूसुफ अलैहिस्सलाम को कहाँ पे भेजा जा रहा है, जेल में। उसने कहा कि इसको भाई कैद किया जाए क्योंकि बहुत ज्यादा बदनामी हो गई ना। तो उसने कहा कि भाई बदनामी मिटाने का एक ही जरिया है, क्या है, कि भाई इसको जेल भेज दिया जाए। और यूसुफ अलैहिस्सलाम ने भी अल्लाह से ये कहा कि अल्लाह मुझे इन औरतों के मकर से बचा और कहाँ भेज दे, मुझे जेल इससे बेहतर है। उसका नाम था ज़ंदाने ज़ाविरा, मतलब उस तारीख में आता है कि ज़ाविरा के जेल में मुझे भेज दे, लेकिन इन औरतों के मकर से मुझे बचा ले। और इस मुसन्ना जो है ना, वो जिक्र आता है मुअन्नस का मुसन्ना, मतलब एक औरत नहीं थी वो जो अपनी तरफ बहका रही थी, बल्कि बहुत सारी थी। जुलेखा के बाद भी उनको बहुत सारी औरतों ने अपनी तरफ माइल करना चाहा, लेकिन किसी तरफ माइल नहीं हो गए। उन्होंने कहा अल्लाह से कि अल्लाह मुझे जेल में भेज दे, पर इनके मकर से मुझे बचा ले, यूसुफ अलैहिस्सलाम ने। ठीक है, तो यहाँ से फिर यूसुफ अलैहिस्सलाम कहाँ चले गए, जेल में। यूसुफ अलैहिस्सलाम की जो जेल की ज़िंदगी के बारे में आता है ना कि जेल में उन्होंने 7 साल गुजारे। ठीक है, 7 साल जेल में गुजारे, लेकिन बाद में कहा था कि 10 साल जेल में गुजारे। और वो भी किस तरह से, वो मैं आगे बताऊंगा। यूसुफ अलैहिस्सलाम को जैसे जेल में भेजा जाता है तो यूसुफ अलैहिस्सलाम वहाँ लोगों की खिदमत करते हैं, सारी चीज़ें। और यूसुफ अलैहिस्सलाम के साथ 2 कैदी और आ गए। उसमें से एक खानसामा था, पूरे मुल्क का जो बादशाह था ना, उसका खानसामा एक था, और दूसरा उसका साकी था, मतलब जो शराब उसको पिलाता था। ये 2 बंदे यूसुफ अलैहिस्सलाम के साथ लाए गए जेल में। अब यूसुफ अलैहिस्सलाम जेल में रहे तो एक मरतबा क्या हुआ कि उन्होंने ख्वाब देख लिया दोनों ने। एक बंदे ने ये ख्वाब देख लिया कि मतलब मैं देख रहा हूँ, उन्होंने यूसुफ अलैहिस्सलाम से फिर जिक्र भी किया कि उसने ख्वाब देखा था कि एक टोकरा उसके सर पर है और वो क्या देख रहा है कि चील कौवे आ रहे हैं और उसको वो रोटियां उठा रहे हैं वहां से। और दूसरे बंदे ने देख लिया कि वो शराब, अंगूरों को निचोड़ के बादशाह को शराब पिला रहा है। अब ये दोनों ने ख्वाब देख लिया, दोनों ने एक साथ ख्वाब देख लिया। अब ये यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास आए ताबीर के लिए। हालांकि इनको क्या पता कि यूसुफ अलैहिस्सलाम ताबीर, लेकिन कहा जाता तारीख में कि यूसुफ अलैहिस्सलाम लोगों की खिदमत करते थे, मतलब बड़े नेक थे, रात को नमाज पढ़ते थे, तो उनको लगता था कि ये हमारी ताबीर देगा, इसलिए हम इनके पास जाते हैं। तो दोनों आ गए किसके पास, यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा कि भाई तुम्हारा मसला क्या है। उन्होंने कहा कि हमने ख्वाब देख लिया। कहा बताओ, मैं ताबीर का इल्म जानता हूँ। तो उन्हें जैसे बताया ख्वाब किया, मैंने एक देखा कि टोकरा है सर पर और चील कौवे आ रहे हैं, रोटियों को उठा रहे हैं। उसने कहा कि मैं बादशाह को शराब पिला रहा हूँ। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उन ख्वाबों को टालने की कोशिश की। उनको पता है ना कि क्या ताबीर है इसकी, और ये फौरन बात बदल देंगे। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा कि आप बाद में आ जाना, अभी आप चले जाओ। वो फिर से बार बार इसरार करने लगे। फिर यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उनको ताबीर दी कि भाई तुम्हारे साथ क्या होगा। एक जो है तुमने ख्वाब देखा कि जो मेरा टोकरा सर पर है और चील कौवे आ रहे हैं, रोटियां उठा रहे हैं। भाई तुम 3 दिन तक तख्तेदार पर लटकाए जाओगे जब तक तुम्हारे जिस्म को चील कौवे नोच न डालें। और दूसरे ने ये कहा, और दूसरे के लिए यूसुफ अलैहिस्सलाम ने ये कहा कि भाई तुम जो है आज़ाद कर दिए जाओगे और तुम बादशाह को शराब पिलाओगे।
اور 3 दिन बाद ये ताबीर वक़ूफ़ पज़ीर हो जाएगी। उन्होंने कहा, उन्होंने फ़ौरन अपना पैंतरा बदला कि भाई हमने कोई ख्वाब नहीं देखा, हम तो ऐसे ही आपको आजमा रहे थे। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा अगर तुमने आजमाया भी होगा ना तब भी ये ताबीर सच निकलेगी, क्योंकि नबी के मुंह से निकली हुई बात कभी झूठी नहीं होती, इसलिए जो तुमने कहा वो तो होकर रहेगा। 3 दिन के बाद सच में उनको लिया गया और उस बंदे को तख्ते-दार पर लटका दिया गया। वो जो रोटियां उसके सर पर थी ना, उसको कहाँ पर लटकाया गया? उस तख्त पर लटका दिया गया जहाँ पे चील कौवे नोच कर उसके जिस्म को चले गए। और इस दूसरे बंदे को वहां पर फिर से उस अपने मनसब पर फाइज कर दिया, साकी ये मनसब पर। लेकिन यूसुफ अलैहिस्सलाम ने निकलते टाइम इस बंदे से कहा था कि अजीज मिस्र ने, जो मुल्क का पूरा बादशाह है ना, बादशाह से कहना मेरा जिक्र करना कि मुझे बेगुनाह कैद कर लिया गया है, मेरे ऊपर जुल्म किया गया, मुझे बेगुनाह कैद कर दिया गया है। अब यूसुफ अलैहिस्सलाम को ख्याल आया, जैसे वो चले गए ना, यूसुफ अलैहिस्सलाम को ख्वाब आया, ये ख्याल आया कि मैंने क्या कर दिया, जो मेरा मौला था, अल्लाह था, मैंने उससे हटकर किसी गैरुल्लाह की मदद तलब की। वो बार बार इस पर रोने लगे, तौबा करने लगे, बार बार तौबा की। फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कहा कि भाई तुम्हें तो 1 ही साल की हमने सज़ा देनी थी, जेल में रखना था 1 ही साल, लेकिन तकदीर अब ये होगी कि तुम्हें 7 साल जेल के अंदर और गुजारने पड़ेंगे। फिर जाकर तुम किस वजह से तुमने गैरुल्लाह से मदद तलब की। तो ये जो था ना, ये सारा सर्कल था। ये कौन सा बादशाह इस वक्त था? रिहान बिन वलीद, ठीक है, रिहान बिन वलीद। फिर इसका बेटा आगे आ गया वलीद बिन रिहान। अब 7 साल कहाँ पे गुजारे यूसुफ अलैहिस्सलाम ने? जेल के अंदर। और बाप वहां रो रो के अपनी आंखें जाइल कर गया, मतलब खत्म आंखें, सब कुछ खत्म, मतलब रोशनी खत्म आंखों की, इतना रोए यूसुफ अलैहिस्सलाम। वो कहा जाता है 40 साल इनके बीच में जुदाई रही थी, तो कितना रोए होंगे। अब यूसुफ अलैहिस्सलाम जेल के अंदर है, 7 साल और गुजारनी पड़ी जेल के अंदर। अब नया बादशाह आता है जिसका नाम था वलीद बिन रिहान, ठीक है, ये तारीख में आता है। नया बादशाह आता है तो उसने पहले ही दिन ख्वाब देख लिया। पहले दिन उसने क्या ख्वाब देख लिया कि भाई दरियाए नील से नमूदार कुछ कमजोर गायें हो रही है और कुछ दुबली मोटी ताज़ा गायें हो रही है, और वो जो पतली दुबली पतली गायें है ना, वो मोटे ताज़े गायों को खा रही है, मतलब वो क्या कर रही है, उनको निगल रही है जिंदा। और उन्होंने एक और ख्वाब देख लिया कि जिसमें सरसब्ज खोशे, गंदुम के सरसब्ज खोशे, हरे भरे खोशे, वो क्या कर रहे हैं, सूख रहे हैं। मतलब उन्हें ये भी देख लिया कि 7 सारे सरसब्ज खोशे गंदुम के और 7 मतलब कैसे खुश्क। तो उन्होंने ये ख्वाब देख लिया। तो अब उन्होंने बुला लिया सब, जितने भी पुजारी वगैरह थे ना, सबको बुला लिया कि भाई मैंने ख्वाब देख लिया, इसकी क्या ताबीर है। अब उन्होंने अपने तमाम टोटके आजमा लिए, सब कुछ किया, तो उनकी ख्वाब की ताबीर कहाँ से निकलनी थी? वो तो यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास ही मौजूद थी ना। अब उस बंदे को याद आया कि हाई हमारी जेल में एक बंदे ने ताबीर की थी, वो इसकी ताबीर कर सकता है। तो उसने बादशाह से जिक्र किया कि मेरे पास एक ऐसा बंदा है जो उसकी ताबीर निकालेगा। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास ये गया। अब ये यहाँ से गया यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास ताबीर निकालने के लिए। 7 साल के बाद इसको याद पड़ा। वो तो अल्लाह ने ही इसको भुलाया था, इसको याद था। 7 साल तक अल्लाह ने भुला दिया कि तुमने गैरुल्लाह से मदद तलब की। अब इसके जहन से भी वो बात निकली कि बादशाह के सामने जिक्र करेगा कि उसको बेगुनाह कैद किया गया है। लिहाजा वो बादशाह ने ख्वाब देखा, तो अब ये रात को आ गया। कहा जाता है, तारीख में आता है कि ये जेल शहर से बहुत ज़्यादा दूर थी, तो इसलिए उनको रात को ही जाना पड़ा ताबीर लेने के लिए। रात को ताबीर लेने के लिए गए। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा कि बिल्कुल ठीक है, मैं इसकी ताबीर मेरे ही पास है, मैं इसकी ताबीर ये निकालता हूँ कि 7 साल जो है बहुत ज़्यादा फल उगेंगे, सब्जियाँ उगेगी, फसल उगेगी, लेकिन 7 साल के बाद कहत फिर से 7 साल होगा। और ऐसा कहत होगा कि खाने के लिए कुछ भी नहीं होगा, बारिश का एक बूंद नहीं गिरेगा, लेकिन उससे पहले बहुत फरावानी होगी। अगर आप किस पत्थर पर भी अपने अनाज डालोगे तब भी उगेगा। लिहाजा ये ताबीर है मेरी कि 7 साल तुमने कहत का आगे सामने करना है, लेकिन 7 साल बहुत ज़्यादा फरावानी रहमत होगी। तो उनने वापस गए, बादशाह के सामने ख्वाब जिक्र किया। तो बादशाह तो हैरान और परेशान हो गया, भाई ऐसा बंदा, ऐसी ताबीर करने वाला, बिल्कुल ऑथेंटिक ताबीर, सबको नजर तो आ रहा था इस ख्वाब की ताबीर, लेकिन किसको समझ नहीं आ रहा था ना। यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास ही ताबीर थी। अब बादशाह के दिल में अल्लाह ने मोहब्बत डाल दी। अब बादशाह कह रहा है कि यूसुफ को बुला कर लाओ। भाई इतना नॉलेजेबल बंदा, उस टाइम पे ताबीर इल्म जानने वाला या इल्म पढ़ने लिखने वाले बंदे को ज्यादा वैल्यू दी जाती थी कि भाई इल्म वाला बंदा जेल में पड़ा है, इसको क्यों आपने जेल में रखा है। तो फिर जैसे वो गए दोबारा यूसुफ अलैहिस्सलाम को लाने के लिए, यूसुफ अलैहिस्सलाम ने शर्त रखी कि भाई अजीज है, इससे बादशाह से कहो पहले उन औरतों को बुलाए जिन्होंने मुझ पर तोहमत लगाई थी, जिनने मुझ पर झूठा इल्ज़ाम लगाया था कि भाई इसने बदकारी की है। पहले उन औरतों को बुलाकर लाया जाए और मेरा केस उनके सामने रखा जाए, क्या मैंने गलत किया था या नहीं किया था, फिर मैं वापस आऊँगा। तो वो गए वापस।
यहाँ पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है कि मतलब यूसुफ अलैहि सलाम कितने अखलाक वाले थे कि मतलब अल्लाह के रसूल ने कहा कि उन्होंने शर्त रखी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा अगर मैं वहाँ उसकी जगह होता तो मैं तो चला जाता, लेकिन यूसुफ अलैहि सलाम कितने अखलाक वाले थे कि उन्होंने शर्त रखी और ताबीर भी बता दी। ये नहीं कि ताबीर ने बताई, हालांकि उनके साथियों ने उसे कहा था यूसुफ अलैहि सलाम को ताबीर मत बताओ, इनको कहो पहले मुझे आज़ाद करो बाद में ताबीर दूंगा। तो यूसुफ अलैहि सलाम ने कहा नहीं ऐसा नहीं है, बल्कि मैं ताबीर दूंगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं कि अगर मैं यूसुफ की जगह होता तो क्या करता, ताबीर पहले नहीं देता, पहले कहता कि मुझे रिहा करो फिर ताबीर देता। असल में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़ा जो है वो छोटों की तारीफ करता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यूसुफ अलैहि सलाम की तारीफ करते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर नबी की तारीफ की है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये इसकी यूसुफ अलैहि सलाम की भी की, कहा यूसुफ अलैहि सलाम कितने अखलाक वाले थे। तो अब ये वापस आ गए तो उनके सामने केस रखा। औरतें पूरे मिस्र की जो औरतें थी ना उनको बुलाकर लाया, जो जुलेखा की उसमें ज़ियाफ़त में थी, उस दावत में उस वक्त शामिल थी, उन सबको बुला लिया। बादशाह ने उनके सामने केस रखा कि यूसुफ का केस तुम्हारे सामने क्या है। तो उन औरतों ने कहा कि ये जो जुलेखा है ना अजीज़ मिस्र की बीवी, इसने हमसे कहा था कि यूसुफ पाकदामा, उस वक्त कहा था कि यूसुफ तो पाकदामा रहा, मैं ही गुनहगार थी, लेकिन अगर ये मेरी तरफ नहीं आया इसको जेल में डाल दूंगी। तो अब जुलेखा को लगा कि भाई पर्दा तो फाश हो गया, सब कुछ फाश है इनके सामने। तो उसने भी कहा कि यूसुफ अलैहिस्सलाम तो पाक दामन थे, मैंने ही गुनाह किया था, मैंने उनको अपनी तरफ माइल किया था। तो फिर बादशाह ने कहा कि भाई इनको कैद कर लो औरतों को। भाई यूसुफ अलैहिस्सलाम को झूठे केस में किस में डाल दिया, जेल में डाल दिया। अब यूसुफ अलैहिस्सलाम की जो मतलब पाकदामनी थी ना वो सब पर आश्कार हो गई, सब पर जाहिर हो गई। अब बुला लिया यूसुफ अलैहिस्सलाम को। अब यूसुफ अलैहिस्सलाम ने आना ही था क्योंकि पाकदामनी जाहिर हो गई है ना, नजात मिल गई, उस जो उनके ऊपर तोहमत लगी थी ना उससे नजात मिल गई। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम जेल से आ रहे हैं। अब यूसुफ अलैहिस्सलाम जेल से आ रहे हैं तो उनका बड़ा इंतज़ाम किया गया, सब कुछ किया गया और उन्हें मुशीर बना लिया अपना अजीज़ वो उस बादशाह ने, क्योंकि अल्लाह किसी भी शख्स के अंदर मोहब्बत बादशाहों के अंदर मोहब्बत डाल दे तो वो अपना सब कुछ उस पर लुटा देंगे। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम के बारे में आता है, यूसुफ अलैहिस्सलाम ने यहाँ क्या काम किया कि मतलब अब उसके पास तरगीब भी होनी चाहिए थी ना। 7 साल कौन गला जमा करेगा, मतलब अगले 7 साल जो कहत आएगा उसके लिए क्या करना है ये तो एक नबी को ही पता होगा ना, एक जानने वाले को ही पता होगा। तो अब बादशाह जो है इसके बारे में मशवरा कर रहा है कि भाई इसको कैसे काउंटर किया जाए, इसके बारे में कैसी फिक्र की जाए। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा कि ये जिम्मेदारी आप मुझे बना लो, मतलब ये जिम्मेदारी आप मुझे सौंप दो तो मैं क्या करूँगा, मैं वज़ीर ख़जाना रहूँगा, मतलब इस गल्लाबानी करूँगा, सारी चीज़ें मेरे हाथ में होंगी, मुझे इसका इल्म है, मैं जानता हूँ, पढ़ला लिखला जानता हूँ, मैं नॉलेजेबल बंदा हूँ, तो लिहाजा क्या करूँगा, इनको अच्छी तरह संभाल सकता हूँ। और कहा जाता है कि यहाँ पे अल्लाह की वही थी कि यूसुफ इस मनसब को कबूल करो, है ना। बाज़ औक़ात किसी मनसब को कबूल करना पड़ता है जब उसके अहल मौजूद नहीं हो, ठीक है। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने यहाँ इस मनसब को कबूल किया। तो अब क्या कहा जाता है कि यूसुफ अलैहिस्सलाम को यहाँ का जो है वज़ीर ख़जाना बना दिया गया, मतलब पूरे इजिप्ट का वज़ीर ख़जाना किसको, यूसुफ अलैहिस्सलाम को। अब जो ये कतफीर था ना जो अजीज़ मिस्र था पहले, अब इसको क्या किया जाता है, मतलब ये मर जाता है तो अब इसकी जगह किसी को वज़ीर तो बनाना है ना, अजीज़ मिस्र तो बनाना है ना। तो अब जैसे बारी आ गई अजीज़ मिस्र बनाने की, यूसुफ अलैहिस्सलाम को फिर से बनाया गया वज़ीर मतलब अजीज़ मिस्र, मतलब वज़ीर बनाया गया पूरे इजिप्ट का। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम से एक तरह के बादशाही, मतलब उनको सारा इख्तियार था ना फैसले करने का, सब कुछ इख्तियार था यूसुफ अलैहिस्सलाम को फैसले करने का। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम कहाँ पे रहे, फिर अजीज़ मिस्र की उस पोस्ट पर, वज़ीर की उस पोस्ट पर यूसुफ अलैहिस्सलाम आकर ठहर गए। अब इन्होंने 7 साल बिल्कुल गल्लाबानी की, सब कुछ किया, लेकिन 7 साल आगे कहते इंतज़ार कर रहा था ना। 7 साल इन्होंने गोदाम बनाए, बने बड़े, आज भी वो मौजूद है इजिप्ट में, अभी भी मौजूद है ना। ये व्लॉगर वगैरह जाते हैं ना यूट्यूब पर, आप देख सकते हो, तो वो जगह अभी भी मौजूद है जहाँ यूसुफ अलैहिस्सलाम ने वो गोदाम बनाए थे, जहाँ वो गंदुम जमा की थी। यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास उसकी तरकीब ये बताई जाती है तारीख में कि उनने खोशों के साथ, जो बाहर से छिलका होता ना गंदुम का, उसके साथ गंदुम को है ज़ख़ीरा कर लिया। मतलब दूसरों ने भी करनी चाहिए थी लेकिन वो ख़राब हो गई, लेकिन यूसुफ अलैहिस्सलाम ने की तो यूसुफ अलैहिस्सलाम की बच गई 7 साल। फिर यूसुफ अलैहिस्सलाम आगे जो कहत आया ना, जैसे कहत शुरू हो गया तो फिर यूसुफ अलैहिस्सलाम दूसरों को गल्ला देने लगे कि मतलब कहत पड़ गया, अब वो कहाँ से लाएंगे। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उनको गल्ला देना शुरू कर दिया। अब यूसुफ अलैहिस्सलाम जो है सोचने लगे कि भाई ये जो केनान है जहाँ मैं रहता था वहाँ भी तो कहत पड़ा होगा, अजीज जो इजिप्ट है, शाम है, फ़लस्तीन है, इसमें तो सब में कहत सारी जगह है, तो क्या करेंगे, लिहाजा कि मतलब मेरे भाइयों का और मेरे बाप का क्या हाल होगा। ये यूसुफ अलैहिस्सलाम सोच रहे हैं इनके बारे में।
اب ایک مرتبہ کیا ہوتا ہے کہ مطلب انہوں نے یعقوب علیہ السلام نے اپنے تمام بیٹوں کو بھیج دیا کہ بھائی تم مصر جاؤ، ہم نے سنا ہے مصر میں کوئی گلہ دیتا ہے، مطلب کوئی عزیز مصر بڑا ہی سخی بندہ ہے جو گلے دیتا ہے، لہٰذا اس کے پاس آپ گلہ لینے کے لیے جاؤ۔ یہ 11 بھائی آتے ہیں گلہ لینے کے لیے، اور یوسف علیہ السلام نے ان کو پہچان لیا، اپنے ہاں بڑی دعوت کی، سب کچھ انتظام کر لیا ان کا۔ لیکن یوسف علیہ السلام نے ان کو پہچانا، لیکن یوسف علیہ السلام کو یہ نہیں پہچانے، کہ یوسف علیہ السلام بڑے ہو گئے تو ان کو لگا تھا کنویں میں، کہیں قافلے میں، کہیں پتہ نہیں کہاں ہوگا، یہ عزیز مصر کہاں سے ہوگا، لیکن اللہ کی پلاننگ دیکھو نا، کہاں سے اٹھا کر، کنویں سے اٹھا کر بادشاہ بنا دیا۔ اب وہ سوچ رہے تھے کہیں گل سڑ گیا ہوگا، پتہ نہیں کہاں چلا گیا ہوگا، لیکن ان کو کیا پتا تھا کہ یوسف علیہ السلام کس منصب پر ہے، انہوں نے نہیں پہچانا۔ اب یوسف علیہ السلام نے کیا کیا، ان کو گلہ بھی دے دیا، اور ان نے جو روپیہ پیسہ سب کچھ دیا تھا ان کے گلے میں واپس رکھ دیا، کہ مطلب یہ ان کو واپس کر دیا، تاکہ ان کو یہ شوق دلانا تھا کہ کس طرح سے واپس آ جائیں۔ اور ان سے کہا کہ بھائی تم آئے ہو 10 بندے، تمہارا کوئی اور نہیں ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہمارا ایک باپ ہے جو بوڑھا ہو گیا ہے، اور ایک بھائی ہے جو باپ کو بہت زیادہ پسند ہے، وہ اسے آنے نہیں دیتا۔ تو یوسف علیہ السلام نے کہا کہ اور ہے تمہارا کوئی؟ کہا نہیں، ایک اور بھائی تھا، اس کو بھیڑیا کھا گیا تھا۔ کہا اچھا ٹھیک ہے، ان کو مت پتا تھا یہ کون ہے، تو انہوں نے کر لیا کہ ٹھیک ہے، لیکن اگلا جو تمہارا بھائی ہے نا گھر میں، بنیامین، جس کا ذکر انہوں نے کیا، کہ بنیامین ہمارے گھر میں، کا بنیامین جو ہے نا اس کو اگلی بار لے آنا، اگر نہیں لاؤ گے تو تمہیں کیا ملے گا؟ گندم نہیں ملے گی، تمہیں گلہ نہیں ملے گا اگر اس کو نہیں لایا۔ اب یہ واپس چلے گئے گھر، یہ سارے بھائی، تو انہوں نے کیا دیکھ لیا کہ مطلب اسی میں سارا سب کچھ، پیسے ویسے سب کچھ پڑے ہیں، جو ہم نے سکے دیے تھے گلے کے لیے وہ تو وہیں پڑے ہوئے ہیں۔ وہ حیران ہو گئے کہ ہم سے پیسے کیوں نہیں لیے گئے۔ ایک تو یہ ان کو شوق دلانا تھا واپس مصر آنے کا، ان کا اپنے بھائی کو بھی ساتھ لانا۔ اب انہوں نے کیا کر لیا، بنیامین کو اصرار کیا کہ بنیامین کو بھی آنا پڑے گا۔ باپ سے کہا نا، تو باپ نے کہا تم نے یوسف کو بھی ایک بار لیا تھا، بعد میں وہ واپس نہیں آیا تھا، اس لیے میں ان کو آپ کے ساتھ نہیں بھیج دوں گا۔ تو انہوں نے بڑا اصرار کر لیا، پھر بنیامین کو بھیج دیا۔ اور یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ ایک ہی گیٹ سے سب نہیں جانا، پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ وہ بہت زیادہ خوبصورت تھے، سارے بھائی حد سے بھی زیادہ بڑے جوان اور بڑے تگڑے اور بڑے خوبصورت۔ کہا تمہیں نظر لگ جائے گی، ایک ہی گیٹ سے کبھی نہیں جانا۔ اور ان سب بھائیوں سے قسم لی کہ تم بنیامین کو صحیح سلامت واپس لاؤ گے۔ اب ان کو کیا پتا تھا آگے کیا پلاننگ ہے یوسف علیہ السلام کی۔ اب بنیامین بھی جاتے ہیں، یہ 11 بھائی اب ہو گئے، اب ایک ہی گیٹ سے نہیں گئے، یہ الگ الگ گیٹ سے گئے، لیکن پھر بھی پہچانے گئے، ان کا منصوبہ ہی برباد ہو گیا۔ یوسف علیہ السلام نے پھر بھی ان کو پہچان لیا، اور پھر سے دعوت کی، گھر میں سب کو بلا لیا، سب کو کھانا تناول کیا۔ اب یوسف علیہ السلام کی پلاننگ یہ تھی، یوسف علیہ السلام نے کیا کی، بھائی جو ایک ماہ سے ہے نا وہ ساتھ میں بیٹھ جاؤ، مطلب جو ایک ماہ سے ہے وہ ایسے ساتھ میں بیٹھ جاؤ کھانے کے لیے، یہ کہا جاتا ہے سونے کے لیے، سوئے ساتھ میں سب۔ جو ماں کے تھے انہوں نے کہا کہ یہ بندہ اکیلا کیوں ہے؟ کہا اس کا ایک بھائی تھا، وہ مر گیا تھا، لہٰذا یہ اکیلا ہے، اب اس کا کوئی دوسرا بھائی نہیں ہے۔ یوسف علیہ السلام نے بنیامین کو کہا کہ آپ میرے ساتھ سو جاؤ، وہ رات کو ان کے ساتھ سو گئے، تاریخ میں ملتا ہے۔ لیکن دوسری روایتی ملتی ہے کہ ان کو اس کے بعد ضیافت کھانے کی کر دی نا، تو ان کو کہا گا آمنے سامنے وہ بیٹھیں گے جو ان کے آپس میں بھائی ہوں گے۔ تو جو بھائی بیٹھ گئے سامنے، آمنے سامنے سارے بھائی بیٹھ گئے، وہ والے، ایک بنیامین اکیلا رہ گیا۔ تو یوسف علیہ السلام نے ان کو بلایا اپنے پاس کہ آپ میرے ساتھ کھانا کھا لو۔ تو اب یوسف علیہ السلام جو ہے ان کے ساتھ باتیں کرنے لگے، تو یوسف علیہ السلام نے باتوں باتوں میں بنیامین کو بول دیا کہ میں ہی تمہارا وہ بھائی ہوں جو گم ہو گیا تھا، ہے نا۔ یوسف علیہ السلام نے بول دیا بنیامین کو۔ اب ان کا وہ رویہ، وہ سب کچھ وہ دیکھ رہے تھے نا ساری چیزیں، تو انہیں کر لیا کہ میں تمہیں اپنے پاس روک لوں گا، میں کوئی پلاننگ بناؤں گا اور اپنے پاس تمہیں روک لوں گا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ اب انہوں نے پھر سے ان کے لیے گلہ جمع کیا، گلہ بھر دیا، سب کچھ بھر دیا، لیکن اس بار یوسف علیہ السلام نے کیا کیا، جو پیمانہ تھا نا اسے کہا جاتا ہے ساک، تاریخ میں آتا ہے ان کے نام بہت زیادہ، کہ مطلب جس سے وہ دیتے تھے گلہ یا کوئی چیز ان کے گھر کی، یوسف علیہ السلام نے ان کے اس بنیامین کے گلے میں چھپا دی، مطلب جو ان کا گندم تھی نا اس میں چھپا دی۔ اب یہ جب قافلہ جیسے ہی نکلا تو پیچھے سے ان کی فوج آئی اور زور سے آواز لگائی، او چور رک جاؤ، مطلب ان کو کہا جائے او چور رک جاؤ۔ انہوں نے کہا کیا؟ ہم نے آپ کو کھانا کھلایا۔ وہ یوسف علیہ السلام کا وزیر کہنے لگا، یوسف علیہ السلام کا بھی آگے تھا نا مشیر وزیر، وہ کہنے لگے ہم نے آپ کو کھانا کھلایا، ہم نے آپ کو اپنے گھروں میں رکھا، ہم نے آپ کو دعوت کی، سب کچھ کیا، کیا ہماری دعوت میں کوئی کمی رہ گئی تھی کہ آپ نے چوری کر لی؟ انہوں نے کہا کہ ہم چوری کیسے کر سکتے، ہم تو نبیوں کے اولاد ہیں، انبیاء کے اولاد ہیں، ہم چوری نہیں کر سکتے۔ انہوں نے کر لیا کہ یوسف کا عزیز مصر، یوسف تو انہوں نے بولا نہیں، عزیز مصر کی کوئی چیز گم ہو گئی ہے، ہمیں لگتا ہے کہ وہ تمہارے پاس ہے۔ تو انہوں نے کر لیا ٹھیک ہے چیکنگ کر لو۔ انہوں نے کہا اگر تمہارے پاس نکل آئی پھر کیا سزا ہوگی؟ کہا ہمیں تو پتہ نہیں یہاں کی سزا کیا ہے، لیکن ہمارے یہاں کی سزا الگ ہے۔ کہا تمہاری سزا کیا ہے؟ کہا ہمارے یہاں جب کوئی چور
चोर चोरी करता है उसको 4 साल गुलामी में लिया जाता है। उन्होंने कहा ठीक है। तो उन्होंने पहले प्लानिंग की थी ना, तो देखा बिन्यामीन के उस गंदुम के उस ठेले में निकल गया वो, मतलब जिससे देते थे जाम। तब उन्होंने कहा कि भाई बिन्यामीन को 4 साल गुलामी में आना पड़ेगा क्योंकि तुम्हारे हिसाब से सजा मिली। तो उन्हें वो बहुत ज्यादा रोने लगेगा, हमारा बाप बूढ़ा हो गया पहले एक के चक्कर में, कि मतलब उसकी आंखें जाइल हो गई, सब कुछ हो गया, अब इसकी जुदाई वो बर्दाश्त नहीं कर सकता, लिहाजा इसको आप हमारे साथ इसको भेज दो, हमारी जगह किसी और को कैद कर लो, है ना, हमारी जगह हम भाइयों में से किसी और को कैद कर लो, लेकिन इसको मत कैद कर लो। लेकिन ना कहा कि भाई चोरी इसने की है यही कैद होगा, इसके अलावा कोई और कैद नहीं होगा। उन्होंने कहा ठीक है। लेकिन एक भाई उनके साथ और ठहर गया, कहा मैं तब तक वापस नहीं जाऊंगा, मैं बाबा को मुंह नहीं दिखा सकता, मैंने तो कसम खा ली थी। उनके बारे में आता है कि या तो वो लावी था, ठीक है, सॉरी लावी था, या रुबीन उसका नाम, ठीक है, वो जो मैंने पढ़ाया था ना, ये सारी बेटे किसके थे, लिया के थे, ठीक है। तो इसके बारे में आता है कि ये इन दोनों में से एक ठहर गया वहां पे, कहा मैं तब तक नहीं आऊंगा। तो ये वापस चले गए। अब याकूब अलैहिस्सलाम को जैसे पता चला कि बिन्यामीन भी गायब है, उन्होंने कहा कि ये तुम्हारा बड़ा ही मकर है, ये भी तुम्हारा, जिस तरह से तुमने यूसुफ को लिया था इसी तरह से तुमने बिन्यामीन को भी लिया, वापस नहीं लाया। उन्होंने कहा कि बाबा आप हमारे यकीन कीजिए, उनने चोरी की यानी की, लेकिन अजीज मिस्र ने उसको अपने पास रोक लिया। तो फिर वहां से उन्होंने कहा था, खत लिखा यूसुफ अलैहिस्सलाम के नाम याकूब। कुरान शरीफ में, कुछ कुरान शरीफ में है, कुछ तौरात में है, कुछ तारीख की किताबों में है ना, ये सब कुछ मिक्स करके आप बता रहा हूँ। कुरान शरीफ में ये नहीं है कि खत लिखा, ठीक है, लेकिन ये तारीख में मिलता है। फिर उनने खत लिखा वहां से, ठीक है। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने क्या किया, यूसुफ अलैहिस्सलाम को क्या किया, याकूब अलैहिस्सलाम ने खत लिखा और कहा कि भाई खानदाने नबूवत का चोरी से कोई ताल्लुक नहीं है, तुमने चोरी के इस मसले में मेरे बच्चे को क्यों गिरफ्तार किया, अगर तुमने मेरे बच्चे को नहीं छोड़ा तो मैं क्या करूंगा, तुम्हें ऐसी दुआओं को दूंगा कि तुम्हारी सल्तनत जो है वो खाकस्तर हो जाएगी, बिल्कुल तहोतेग हो जाएगी, लिहाजा मेरे बच्चे को वापस कर दो। अब उन्होंने बाप का जैसे खत पढ़ लिया ना, वो तो रोने लगे कि भाई ये क्या मसला है, मेरे बाप का खत आ गया, और उनकी आंखें बिल्कुल बेनाई जाइल, सब कुछ उस रोने धोने में। तो वापस भेज दिया इन सब भाइयों को, फिर से दरबार में आ गए, मतलब ये वापस भेज के फिर उन्हें खत पढ़वाया था, फिर खत दिया, फिर यूसुफ अलैहिस्सलाम ने सब राज जो है उगल दिया। और वो क्या तरकीब थी, तफसीर में आता है, तफसीर इब्न कसीर में या तारीख की किताबों में आता है कि वो जो जाम था ना, जो चोरी हुआ था, उसी को यूसुफ अलैहिस्सलाम ऐसे मारने लगे। कहा इसमें कुछ आवाज आ रही है। कहा क्या आवाज आ रही है? कहा आवाज ये आ रही है कि तुमने अपने भाई यूसुफ को बड़े हीले बहाने करके लिया और कहाँ पे डाल दिया, कुएं में डाल दिया, फिर उसको बेच दिया, सब कुछ कर लिया। कहा ये इसमें से जाम में आवाज आ रही। वो तो बिल्कुल ऐसे सामने ही थे ना, वो तो हैरान हो गए। उन्हें एक और ठाई मारा उसको, ऐसे ना टड़ाका मारा उस जाम को। कहा इसमें एक और आवाज आ रही है। फिर यूसुफ अलैहिस्सलाम वहां से निकले और मिस्र के बाजार में बिके, फिर अजीज मिस्र के यहाँ चले गए, फिर वहां पे उन्होंने बच्चा बना लिया, फिर एक और ठाई मारा उसको ऐसे ना जाम को। कहा फिर जेल में चले गए, फिर जेल में इतनी साल जिंदगी गुजारी, फिर वापस आ गए और आज वो अजीज मिस्र है वो यूसुफ। अब वो सामने ही थे ना। उन्होंने कहा कि वो हैरत ज़दा अल्फाज में इन्नका लअंत यूसुफ, मतलब एक रोब उनके अंदर तारी हो गया कि अब हमारा क्या होगा, मतलब यूसुफ तो यही है। मतलब उनको एक हैरत थी कि मतलब सामने यूसुफ इस दर्जे पे, एक तो उनको शक हो रहा था कि भाई यूसुफ ही है, दूसरा उसमें यकीन आ रहा था कि भाई यूसुफ ही शायद, तीसरा उनको डर भी था कि भाई क्या हो रहा हमारे साथ, हमारा जो सारा राज और जो भांडा था वो फूट गया, सब कुछ हमारे सामने आ गया। तो कर लिया इन्नका लअंत यूसुफ, मतलब तो उन्होंने कहा कि अना यूसुफ अना वहाज़ा अखी, मैं यूसुफ हूँ और ये मेरा भाई बिन्यामीन है। उन्होंने सामने कर लिया और बिल्कुल आजिज़ाना अल्फाज में, ये नहीं कहा कि मैं तुमसे आप दिखाऊंगा बदला लेके तुम्हें इलाज कर लूंगा। और उन्होंने आगे भी कहा हल अलिमतुम मा फ़अलतुम बियूसुफ व अखीही इज़ अंतुम जाहिलून, तुम्हें याद है, मतलब तुम्हें इसके बारे में इल्म भी है कि तुमने जहालत में, ये नहीं कहा कि तुमने जबरदस्ती, कि जहालत में तुमने क्या कर दिया था यूसुफ और उसके भाई के साथ। ये नबी के अखलाक होते हैं, ये यूसुफ अलैहिस्सलाम ने इनको बताया। उन्होंने कहा लिया कि हमें तो माफ़ कर दो। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उनको माफ़ कर दिया, कहा मैं तुम्हारी बड़ी जुदाई से, और बड़ी हमदर्दी के साथ गले लगाया, सब कुछ उनके साथ सब मामला सलूक कर लिया। अब यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा कि हमारे बाबा जो है ना, उनके लिए वो नाबीना थे ना, उनके लिए मेरा एक कुर्ता ले जाओ। अब सब के सामने आश्कार हो गया कि ये यूसुफ है। तो उनको कहा कि गया कि आप इसके कुर्ता ले लो मेरा, ताकि उनको बेनाई वापस आ जाए। अब कुर्ते के बारे में कहा जाता है कि वो यहूदा ने लिया था, है ना, लावी का भी आता है, लावी के बारे में भी आता है, यहूदा के बारे में, लेकिन ऑथेंटिक रिवायत है कि यहूदा का ही आया था कि मतलब यहूदा ने ये कुर्ता यहाँ से लिया कहाँ पर,
किनान मिस्र से। उनने कहा यहूदा ने कि पहले मैंने आपका कुर्ता लिया था बाबा के पास, कहा था कि ये मर गया, इसको भेड़ियों ने खा लिया, अब मैं ही कुर्ता लूंगा आपका और क्या कहूंगा कि भाई वो जिंदा है, ये उनका कुर्ता है। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा कि हाँ आप ही जाओ। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम, वो जो यहूदा था ना, वो चला गया वो कुर्ता लेकर, कहाँ, केनान। लेकिन याकूब अलैहिस्सलाम को 8 दिन पहले ही खुशबू आ रही है यूसुफ अलैहिस्सलाम की। वो कह रहे हैं घर वालों से कि अगर तुम मुझे पागल नहीं कहोगे, पागल का लफ्ज़ तो थोड़ा अजीब लगेगा कि नबी के लिए, लेकिन अगर तुम मुझे सठियाया हुआ नहीं कहोगे, कि मतलब एक बुजुर्ग नहीं कहोगे, अगर तुम मुझे कोई बुजुर्ग नहीं कहोगे, कोई मतलब कुछ और नहीं कहोगे, तो मतलब मैं कोई सठियाया हुआ नहीं हूँ, मुझे यूसुफ की खुशबू आ रही है। तो उन्होंने कहा कि नहीं बाबा ऐसा नहीं हो सकता, यूसुफ की खुशबू यहाँ कहाँ। लेकिन 8 दिन के बाद वो कुर्ता पहुंचा, कहा कि मैंने कहा था ना मुझे 8 दिन पहले खुशबू आ रही है। अब उनने आंखों से लगा लिया तो फौरन बीनाई वापस आ गई। ठीक है ना, यूसुफ अलैहिस्सलाम के बारे में आता है, यूसुफ अलैहिस्सलाम नहीं, याकूब अलैहिस्सलाम के बारे में। ठीक है, उनको बीनाई वापस आ गई। अब यूसुफ अलैहिस्सलाम जो है मिस्र में बैठे हैं, उन्होंने बुला लिया सबको कि भाई सारा काफिला आ जाओ, अब हम यहीं रह लेंगे, मेम्फिस में हम रह लेंगे। मेम्फिस इजिप्ट की एक जगह है, बहुत पुराना शहर है, कि भाई यहाँ पे आप रहो तो हम सब यहीं रहेंगे। तो वो आ गए वहाँ से, अब सब काफिला लेकर वहाँ पहुँच गए। तो उन्होंने देखा कि बड़ी फौज है, सब कुछ है, भाई यूसुफ अलैहिस्सलाम सामने इस्तकबाल के लिए आ रहे हैं। तो उन्होंने अपने बेटे से कहा, यहूदा से, तो भाई ये कौन है, लगता है कि किसी बड़े फ़िरौन का लश्कर है। तो उन्होंने कहा नहीं, ये आपका बेटा है जिसका इतना मर्तबा ऊंचा है, जिसकी पास इतनी फौज है, वो आपके इस्तकबाल के लिए आ रहे हैं, बादशाह खुद इस्तकबाल के लिए आ रहा है, लोग खुद इस्तकबाल के लिए आ रहे हैं। तो ये यूसुफ अलैहिस्सलाम भी इस्तकबाल के लिए आए। तो फिर क्या हुआ कि मतलब वो मिल गए, और जुदाई और रोना धोना वो सब कुछ फिर से हो गया ना, क्योंकि 40 साल के बाद जो मिलना था, 40 साल के बाद मिलना कोई आसान काम है। तो याकूब अलैहिस्सलाम को बीनाई मिल गई, फिर ये दरबार में आ गए। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम की औलाद के बारे में आता है कि इनकी जो बीवी थी ना, उसका नाम था आसनात। ठीक है, वाइफ के बारे में आता आसनात। आसनात, इनसे एक बेटा भी पैदा हो गया जिसका नाम था इफ्राहिम, और दूसरी बेटी हुई जिसका नाम था मनस्से। ठीक है, मिंसा भी, आप ये मिंसा यहीं से निकला है, ये जो लड़कियों का नाम मिंसा रखते हैं ना, ये यहीं से निकला है कि मनस्से उसका नाम था, अब मिंसा रखते हैं। ठीक है, वो तो एक अलग बात है। तो इनकी ये 2 बेटे आसनात से पैदा हो गए। कहा जाता है फिर जुलेखा से भी उन्होंने शादी कर ली थी, वो तारीख में मिलता है, वो बादशाह नहीं करवाई थी। तो फिर यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उसको कहा था कि भाई ये एक तरीका ये भी था कि हम हलाल तरीके से करते, लेकिन तुमने तो मुझे बहकाया था। लेकिन कहा जाता है कि ये बहुत ज़ईफ़ रिवायत है कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, उसके साथ शादी नहीं हुई थी, बल्कि ये जो आसनात है ना, ये किसी मिस्र की किसी बड़े आदमी की बेटी थी, इनसे फिर निकाह हुआ था यूसुफ अलैहिस्सलाम का। लेकिन जब बुलाया बाप को और सबको, तो वहाँ पे जब यूसुफ अलैहिस्सलाम पूरे बन संवर के जब सबके सामने जाहिर हो गए ना, तो फिर ये सारे लोग सजदे में गिर गए। बाप भी, माँ तो लिया थी इस वक्त जिंदा, खाला भी थी, माँ भी एक तरह से है ना, और ये जो 11 भाई थे, ये सब सजदे में गिर गए। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा कि बाबा मेरे ख्वाब की ताबीर पूरी हो गई जो मैंने बचपन में देखा था। कि मतलब क्या, 11 सितारे सूरज और चांद मुझे सजदा कर रहे हैं, आज आप और मेरी माँ और मेरे 11 भाई जो है मुझे सजदा कर रहे हैं, तो ये उस ख्वाब की ताबीर है। तो ये यूसुफ अलैहिस्सलाम की पूरी स्टोरी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान में, किसी नबी के बारे में इतना मतलब वास्ट तरीके से कुरान में नहीं बताया गया जितना यूसुफ अलैहिस्सलाम के बारे में बताया गया है ना। और इसके बारे में भी यूसुफ अलैहिस्सलाम के बारे में आता है कि मतलब यहूदियों ने कहा ना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जिक्र किया, ये मतलब सवाल किया, क्वेश्चन किया यूसुफ अलैहिस्सलाम के बारे में। यहूदियों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से क्वेश्चन किया कि भाई आप हमें बताओ, ये जो मिस्री थे, ये जो याकूब अलैहिस्सलाम की नस्ल थी, ये कैसे मिस्र में आ गए, मतलब ये तो केनान में रहते थे, मिस्र में कैसे है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा मुझे तो नहीं पता, मैं आपको कल बताऊंगा। तो फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पूरी सूरत नाजिल की, मतलब इसमें पूरा जिक्र है कैसे वो मिस्र चले गए, सब कुछ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बयान किया है ना। तो 11 सूरज सितारे वो सारी जो है चीज़ें जो है वो पूरी हो गई। फिर मैंने आपको पिछली क्लास में कहा था कि मतलब क्या याकूब अलैहिस्सलाम के यहाँ पर इंतकाल हुआ था, इजिप्ट में ही याकूब अलैहिस्सलाम का इंतकाल, लेकिन उनकी फरमाइश पर इनको शाम लिया गया था वापस अपने बाप दादा के पास। ठीक है, फिर यूसुफ अलैहिस्सलाम की उम्र के बारे में आता है कि उनकी उम्र 110 साल या कहा जाता है 130 साल। ठीक है, ये दोनों रिवायतें मिलते हैं कि ये यूसुफ अलैहिस्सलाम की उम्र है। और यूसुफ अलैहिस्सलाम को दरियाए नील में दफन किया गया। दरियाए नील में एक मरमर का जो पत्थरों का एक चीज़ बनाई गई, उसमें यूसुफ अलैहिस्सलाम को दफन किया गया। लेकिन यहाँ से मूसा अलैहिस्सलाम के टाइम, इसके बाद कुछ टाइम के बाद मूसा अलैहिस्सलाम को दूर है, तो मूसा अलैहिस्सलाम ने उनको दरियाए नील से निकाल कर कहाँ डाल दिया,
उन्हें याकूब अलैहिस्सलाम और इसहाक अलैहिस्सलाम उनके साथ ही दफन कर दिया। यहाँ से उनको किसी बूढ़ी ने कहा था मूसा अलैहिस्सलाम को कि मैं तुम्हें यूसुफ की कब्र बता देती हूँ, तो वो बहुत दूसरा वाक़या है, लेकिन उन्होंने कहा था, एक बूढ़ी ने कहा था कि मैं आपको यूसुफ की कब्र दिखाता हूँ, उसको आप निकाल दो यहाँ से। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने वहाँ से निकाल के फिर उनके साथ दफन किया था। ठीक है ना, ये यूसुफ अलैहिस्सलाम की स्टोरी के बारे में आता है। अच्छा, ये सारा मामला जब पेश आया ना, एक अहम मसला, ये सारा मसला जब पेश आया ना, सब कुछ हो गया, सब मिल गए, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कहा, एक ज़ईफ़ रिवायत के मुताबिक आता है कि मतलब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने याकूब अलैहिस्सलाम से कहा कि याकूब जानते हो हमने आपसे इम्तिहान क्यों लिया? कहा अल्लाह मैं तो नहीं जानता। कहा एक मरतबा आप नमाज पढ़ रहे थे ना, तो सामने यूसुफ था, वो अभी बच्चा ही था, वो रोने लगा, नमाज में आपकी निगाह उसकी तरफ चली गई, तो मुझे ये गवारा नहीं हुआ कि मेरा नबी होकर गैरुल्लाह की तरफ निगाह उठाए, इसलिए मैंने उन आंखों की बिनाई ही ज़ाइल कर दी जो गैरुल्लाह की तरफ उठी थी, और मैंने उस गैरुल्लाह को जो सामने बैठा था उसको भी आपसे 40 साल दूर रखा, फिर आपको मिला दिया फिर से। किस वजह से? गैरुल्लाह पर तुम्हारी नज़र गई, हालांकि तुम नबी होकर ऐसा काम नहीं कर सकते। तो ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को बड़ा गैरत आती है, अगर गैरुल्लाह की तरफ निगाह उठ गई ना तो फिर तो बहुत मसला खड़ा हो जाएगा। लेकिन ये यूसुफ अलैहिस्सलाम की स्टोरी थी, उसके बारे में आपको कोई क्वेश्चन है? दावत किस तरह दी यूसुफ अलैहिस्सलाम ने? जब ये वहाँ से आए ना, जिस तरह से दिए अंबिया एक खुदा की दावत देते थे, जाहिर सी बात है उस टाइम पे यूसुफ अलैहिस्सलाम ने क्या किया, जेल में सबसे पहले उन्होंने दावत दी, जो अपने साथी थे उनको दावत दी, बाद में उन्होंने कहा कि भाई तुम पत्थरों से क्यों उम्मीदें रखती हो, ये जो तुम्हारे पत्थर तुमने अलग अलग बुत बनाए, ये तुम्हें न कोई बिगाड़ सकते हैं न कोई दे सकते हैं, लिहाजा तुम एक अल्लाह की वहदहु ला शरीक की इबादत करो, है ना। इसके बारे में आता है, क्योंकि ये पहले से तौहीद परस्त थे, इनका खानदानी हम पूरा शजरा निकालें तो फिर पता चलता है, तो इन्हें वही दावत इब्राहिमी वहाँ पर पेश कर दी। और मुसलमान हुए थे हाँ, उनके साथ ही मुसलमान हुए थे ना, कहा जाता है इनको जेल में ही नबूवत मिली थी, है ना, ये जो तौबा ताइब हुए थे ना तब उनको नबूवत मिली थी, ये भी कहा जाता है। और कुछ? ठीक है, तो यूसुफ अलैहिस्सलाम की स्टोरी थी ना, बड़ी खूबसूरत स्टोरी है। तो इंशाल्लाह आगे फिर हम इसी तरह से क्लास लेंगे तो फिर उसमें आगे अलग अलग नबियों का जिक्र आएगा। हाँ, तो जिक्र एक तो सूरह यूसुफ में जो है, यूसुफ अलैहिस्सलाम का जो जिक्र है ना, वो कुरान में भी है सूरह यूसुफ में, ठीक है, यूसुफ में, अनआम में भी है, और एक और सूरह में है शायद सूरह हुजरात में, ठीक है, इस तरह से आता है। और जेनेसिस, जो बाइबल बाइबल में भी उनका जिक्र है, तौरात में ज़्यादा जिक्र है, बाइबल में ज़्यादा जिक्र है। एक तो जेनेसिस 37 में, 39 में, 40 में, 41 में, 42 में, 43 में, 45 में, ये साथ में ही जिक्र मिलता है ना, 44, 45, 46 और 47 और 50, ठीक है, ये जेनेसिस है बाइबल का, मतलब इनमें जिक्र मिलता है। बाइबल का जो जेनेसिस है ना, आप पढ़ोगे तो उसमें जिक्र मिलेगा। 41 में इनकी बीवी का जिक्र आता है, बहुत सारी चीज़ों के बारे में जिक्र आता है। और तौरात में जो पहला चैप्टर है ना ओल्ड टेस्टमेंट्स का, ठीक है, जो मैंने कल भी बोला था आपको, जिसमें याकूब अलैहिस्सलाम का जिक्र है ना, उसी में इसका भी जिक्र है। किसका? यूसुफ अलैहिस्सलाम का। पूरी स्टोरी, होल स्टोरी इसमें कवर की गई है यूसुफ अलैहिस्सलाम की ही। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम, अहादीस में भी इनका जिक्र बहुत ज़्यादा आता है, बुखारी में आता है, तिरमिज़ी में आता है, हर रिवायत में आता है। मतलब यूसुफ अलैहिस्सलाम इतने ऊंचे किस्म के नबी हैं ना। पहले कहा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, मन अकरमुन्नास, कौन है सबसे ऊंचा शख्स इस दुनिया में, तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा? यूसुफ ही है। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम का जिक्र बहुत ज़्यादा इन रिवायत में आता है, ठीक है। और कुछ रह गया? जो मिलता है ना कि इसने यूसुफ अलैहिस्सलाम ने ज़ुलेखा के साथ शादी की, हाँ, उनका कोई औलाद नहीं, असल में वो ऑथेंटिक नहीं है ना, वो तो ऐसे ही, वो सीरीज जो बनी है ना उस पर, वो तो मतलब उतनी ज़्यादा ऑथेंटिक नहीं है रिवायत ये कि ज़ुलेखा की फिर से शादी हुई थी। ये भी आता है ना कि ज़ुलेखा उसके इश्क में वो अंधी हो गई थी। नहीं, वो तो कहा जाता है, लेकिन वो तो तारीख का ही मसला है ना। तारीख में कहा जाता है कि फिर से उनसे शादी हुई थी, और ये मैंने 2 बच्चे जो जिक्र किए ना, इब्राहिम और मनस्सा, बाज़ रिवायत में आता है कि ये ज़ुलेखा से ही पैदा हुए थे, बाज़ में आता है कि नहीं उसकी एक और बीवी थी आसनात, उनसे पैदा हुए थे। लेकिन बाज़ तारीख की रिवायत है कि उनसे उनकी शादी हुई थी, लेकिन ये ऑथेंटिक रिवायत नहीं है। वो तो मैंने पहले बताया ना, ज़ुलेखा के साथ उनकी शादी तारीख की वाक़या है, ना कि कुरान वगैरह में कहीं जिक्र है, ठीक है। इंशाल्लाह यूसुफ अलैहिस्सलाम की स्टोरी थी। तो इंशाल्लाह अगले एपिसोड में, अगली सीरीज़ में हम अय्यूब अलैहिस्सलाम का जिक्र करेंगे, ठीक है। अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाए।